completed few topics yesterday, like horticulture and market gardening. And in that topic, we studied about truck farming, then about floriculture, that how Netherlands is a country which leads in the production of tulip flowers. Then all these farmings which जो हमने कल पढ़ा था, like market gardening, horticulture, truck farming, then your factory farming. All these are for urban rich consumers. So these are practiced near the urban areas, basically for the urban consumers. So you have to remember all these things very carefully. Now next is the difference between that. The next type of farming is cooperative farming and collective farming. Both are somewhat same, but there are certain basic differences which we have to study. And many times this question comes for comparison in the examination, like how cooperative farming is different from collective farming. So you have to be very particular about different points. You have to carry, because ये जो है थोड़ा सा टफ है, वैसे टफ क्या है, इसमें रटना ही पड़ता है, लेकिन जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर देम, क्योंकि आप कंफ्यूज होकर बच्चे कोऑपरेटिव की जगह कलेक्टिव का लिख देते हैं, कलेक्टिव की जगह कोऑपरेटिव का. सो नाउ फर्स्ट वी विल गो थ्रू द कोऑपरेटिव फार्मिंग. एज द नेम सजेस्ट, कोऑपरेटिव मीन्स that people are cooperating with each other to attain a certain objective or goal. So basically cooperative word, you are already aware that it means that we are using collective efforts to achieve something. हम लोग जो लोग हैं वो कुछ ग्रुप बना के काम करते हैं ताकि वो जो है उनका जो एम है वो पूरा हो सके. एंड हियर देयर एम इज गुड प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन इज द मेन एम. एंड यहाँ पे ग्रुप बना कौन रहा है? फार्मर्स. So basically cooperative farming is a group of farmers where they are cooperating with each other to attain high production. Now what are the particular points of this? A group of farmers, see cooperative तभी होता है जब ग्रुप ऑफ फार्मर्स होते हैं. एक आदमी से, जब एक आदमी जो है कृषि अच्छे से नहीं कर पाता है, एक फार्मर जो होता है, सिंगल फार्मर इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग बिकॉज वो कुछ ना कुछ उसके पास उसकी कुछ कमियां हो जाती हैं. तो वो जब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं ताकि जो फार्मिंग है वो बेहतर हो सके, वो अपने रिसोर्सेज को पूल अप कर देते हैं. रिसोर्सेज मीन्स लाइक जो भी उनके पास मैकेनिकल टूल्स हैं या फिर उनके पास जो भी बीज हैं, खाद है, जो भी ये सब मिलाकर, इवन जो पैसे हैं, मनी है, कैपिटल है, उनको भी मिलाकर जब वो खेती करते हैं तो उस टाइप की खेती को हम कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं. और यहाँ पे सब जो होते हैं अपनी मर्जी से जो है अपने रिसोर्सेज को पूल अप करते हैं. ऑलराइट, जो भी चीजें वो इकट्ठा करते हैं और एक साथ मिलकर खेती करते हैं, दैट इज ऑन देयर ओन. उन्हें कोई फोर्स नहीं करता है, गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती, वो अपने आप करते हैं. A group of farmers form a cooperative society. I think all of you have heard about cooperative society. Like Amul is a example of cooperative society. Anand जो है आपने सुना होगा, आनंद से ही अमूल जो है बनकर आता है. देन मदर डेयरी है, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे जो है आपके ग्रेनरीज बैंक है महाराष्ट्र में. तो वहाँ पर जो है ग्रेन जो होते हैं, गेहूं है, इनको इकट्ठा किया जाता है, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है. So it is a group of cooperative, it is called cooperative society, where group of farmers by pooling in their resources voluntarily means अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से जो है वो अपने रिसोर्सेज को पूल अप करते हैं, इकट्ठा करते हैं for more efficient and profitable farming, so that their farming can become more efficient and profitable. So these three lines are very important. Cooperative farming is a group of farmers which form a cooperative society. First of all, यहाँ पे group of farmers रहते हैं. First point आप इसमें याद रखिए, group of farmers. Second is they form a cooperative society. Then they pool their resources. Pool up their resources means अपने resources को इकट्ठा कर लेते हैं, and then voluntarily करते हैं बिना किसी दबाव के. और क्यों करते हैं? So that their farming can become more efficient, बहुत बेहतर हो सके और उनके लिए प्रॉफिटेबल हो सके. प्रॉफिटेबल मीन्स कि जो भी वो फार्मिंग करे उनको बेचकर उनको अच्छा रिटर्न मिल सके. इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट. जो किसान की जो जमीन होती है उतनी ही रहती है. जमीन एक साथ वो इकट्ठा नहीं करते, रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं. ठीक है. एंड फार्मिंग इज ए मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव. तो कोऑपरेटिव इनिशिएटिव मींस कि मतलब आपकी मर्जी से जो है फार्मर्स अपने जो है वो साथ में मिलके काम करते हैं और अपनी जमीनों को, लेकिन उनकी जितनी मान लो 50 फार्मर्स है या 100 फार्मर्स हैं, तो जो उनकी इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स होती है, जो भी उनका साइज होता है, दे मेंटेन दैट दे डू नॉट मर्ज लैंड
लैंड मर्ज नहीं किया जाता है, बट रिसोर्सेज जो होते हैं उनको पूल अप करके वो करते हैं। अब मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ, आनंद डेयरी का। जो आनंद एक गांव है आपका गुजरात का, जिसके ऊपर काफी फिल्म मूवीज भी बनी हुई, बिकॉज दैट इज अ वेरी ह्यूज सक्सेस स्टोरी, वेयर फार्मर्स दे यूज टू इंडिविजुअल फार्मर्स दे यूज टू सेल देयर मिल्क टू द अर्बन कंज्यूमर्स विद द हेल्प ऑफ द मीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जिससे कि जो किसान होते थे वो शहर तो जाते नहीं थे, तो जो बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो उनको देते थे और वो जाके शहरों में बेचते थे। तो जो फार्मर्स होते थे उनको उनका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता था। अगर मान लो वो 4 रुपीज पर, मान लो 4 रुपए में वो किसान को उस ट्रेडर को बेच रहे हैं, तो ट्रेडर जाके 10 रुपए में बेचता था अर्बन कंज्यूमर्स को। तो वो जो 6 रुपए थे वो ट्रेडर के पास जा रहे थे, ना कि वो फार्मर के पास आ रहे थे। ये मैंने जिस एग्जाम्पल दिया बहुत 4 रुपए 6 रुपए का। तो इसका मतलब कि जो मेजर शेयर था वो इंटरमीडियरी के पास जा रहा था, डायरेक्ट जो है फार्मर के पास बेनिफिट नहीं आ रहा था। तो इस चीज को देखते हुए जो फार्मर्स थे, दे मेड देयर ग्रुप, उन्होंने देखा कि हमें इससे काफी घाटा हो रहा है, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और फिर उन्होंने क्या किया, जो है ट्रेडर्स जो इंटरमीडियरीज थे उनको हटा दिया, और जो फार्मर्स थे कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई दूध निकालना या जो जानवरों को देखना, कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि वो शहरों में जाके दूध बेच कर आएंगे। और इसके लिए उन्होंने पैसे भी इकट्ठा किए, जो छोटे छोटे ट्रक्स होते हैं या फिर जो उनको कंटेनर्स चाहिए होते थे, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहिए था, उन्होंने वो अपने पैसों से खरीदा। मतलब पूरे गांव ने जो है मिलकर काम किया। इससे क्या हुआ कि जो ये बीच के इंटरमीडिएरीज थे वो बीच से गायब हो गए। अब जो फार्मर्स थे वो खुद डायरेक्टली अपने जो मिल्क था उसको अर्बन एरियाज में सोल्ड करते हैं, और जो डायरेक्ट 10 रुपए थे वो उनको मिलने लग गए। मैं 10 रुपए में अभी भी बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जितना भी लीटर का दूध मिलता होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मर्स के पास आने लग गया, विच हेल्प इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट विलेज। और उससे आप जानते हो फिर आगे बहुत सारे उन्होंने चीज है तो बटर है जो भी उन्होंने बनाना शुरू किया। सो दैट इज द ह्यूज सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव society, how individual when farmers they can make their group, they can pool up their resources and they can achieve higher returns. Now cooperative societies help farmers to procure all important inputs of farming. The major benefit of cooperative societies is that all the farmers, whether of देखो हर farmer के पास, especially in a country like India, all the farmers does not possess each and every tools and machines which they use, which they require for farming, because poverty है, गरीबी है हमारे भारत में। तो some farmers they have tubeless, others don't have, they one of the farmers they have this क्या बोलते हैं उसको, जो मैकेनिकल हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं और ट्रैक्टर्स हैं, बट बहुत सारे फार्मर्स के पास ये नहीं होता है। तो इससे क्या होता था कि सबको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। सो जब से कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, ऑल द फार्मर्स वेदर रिच और पुअर, या फिर जिसके पास भी इम्प्लीमेंट्स नहीं थे, दोज फार्मर्स हु वर लैगिंग बिहाइंड इन वन और द अदर फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंट, उनको भी इम्प्लीमेंट्स मिलने, उनको भी इनपुट्स अवेलेबल हो गए। इनपुट्स क्या होते हैं आपको पता है, एग्रीकल्चर में क्या क्या इनपुट की जरूरत होती है। सबसे पहले आपका जो होता है इरिगेशन चाहिए होता है, सीड है ना, सीड्स चाहिए होते हैं, बीज है, या फिर फर्टिलाइजर चाहिए आपको, या फिर पेस्टिसाइड चाहिए आपको, या फिर आपको मशीन्स चाहिए होती है, मशीन्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं। तो ये जो भी इनपुट था वो एक फार्मर के पास बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है भारत में, जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है। So that's why cooperative societies make all these inputs available to each and every farmer of a particular cooperative society. तो अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो वो तो आपको हर इम्प्लीमेंट जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आप उसी ग्रुप के मेंबर हैं, तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। देन क्योंकि ग्रुप में है आप, तो आपसे कोई भी जो है मनमानी तरीके से अनाज को नहीं खरीदेगा। मतलब ये नहीं कि कम रेट पर आपको एक्सप्लॉइट कर दे, क्योंकि उनको पता है कि आप इस ग्रुप के मेंबर हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी है पूरी, और आप नहीं जानते कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका बहुत ज्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है गवर्नमेंट के सामने भी, क्योंकि जब फार्मर्स ग्रुप में काम करते हैं तो उन्हें कोई भी गलत रेट पर सामान उनसे नहीं खरीद सकता। सेल द प्रोडक्ट एट द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स एंड हेल्प इन प्रोसेसिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर rates. So all these benefits are earned by the farmers due to the cooperative farming. Now cooperative movement originated over a century ago and has been successful in many Western European countries like Denmark. So Denmark is one of the most many times question is asked in the board examination, that in which country cooperative farming was most successful. So कौन सी country है? Denmark.
जहाँ पे पूरा एक मूवमेंट चलाया गया था, और सबसे अधिक सक्सेसफुल इसी देश में रहा है कोऑपरेटिव जो है फार्मिंग का सिस्टम। देन अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप आल्सो फॉलो दिस, लाइक नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली। सो दैट्स व्हाई जो है फार्मिंग है इन कंट्रीज में ज्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक इंडिया। तो इंडिया में अभी भी जो है ये कोऑपरेटिव फार्मिंग वाला सिस्टम बहुत हाईली डेवलप नहीं है। ठीक है, सो रिमेंबर कोऑपरेटिव फार्मिंग मींस फॉर्मिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्स्ट। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, उसके बाद जो भी उसके मेंबर्स होते हैं फार्मर्स, दे ऑल पुल अप देयर रिसोर्सेज फ्रॉम मनी टू इम्प्लीमेंट्स टू इनपुट्स, एवरीथिंग दे पुल अप टुगेदर, एंड दैट टू वॉलंटरीली। वॉलंटरीली मीन्स अपनी मर्जी से, एंड व्हाई दे डू दिस फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द फार्म्स रिमेन इंटैक्ट। मतलब जो फार्म जिसका होता है, खेत जिसका होता है, वो उसी के पास रहता है, उसमें कोई भी उसको मिलाया नहीं जाता है। देन डेनमार्क ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक जो है सक्सेसफुल रहा है कोऑपरेटिव फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्टिव फार्मिंग। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव फार्मिंग, आपको मैं बता दूं, ये सबसे पहले यूएसएसआर में जो है ये काफी डेवलप हुआ, और इस मॉडल को यूएसएसआर में कहते हैं कॉलकोज। I think maybe you have studied this in your history. Like कॉलकोज इज ए टाइप ऑफ, क्योंकि रशिया में जब स्टेलिन और इन सब का ये जब आए थे, तब उन्होंने क्या है सोशल ओनरशिप कर दी थी। अगर आपने यूएसएसआर का पढ़ा होगा तो आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन उन्होंने क्या किया था, पूरी सोसाइटी में जो है रशिया में सोशल ओनरशिप को इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसको कम्युनिज्म कहते थे या फिर सोशलिज्म। मतलब कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के सख्त खिलाफ थे, एंड कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थे, एंड दे वांटेड गवर्नमेंट और द सोशल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। उन्हें ये पसंद नहीं, मतलब कि जो स्टेलिन थे या जो भी यहाँ के जो लीडर्स थे, या जो यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी, वो ये नहीं चाहती थी कि किसी भी इंडिविजुअल आदमी के पास ज्यादा जमीन हो या ज्यादा पैसा हो, और कई ऐसे लोग हो जो बहुत ही गरीब हो। दे वांटेड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resources in USSR. That's why they followed social ownership of the property, और उन्होंने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी वो कर दिया कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो उसी पे आपका एग्रीकल्चर भी होता है कि कोई भी फार्मर के पास एक्सेस जो है जमीन नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में जमींदारी सिस्टम था कि 4 किसान हैं एक गांव में जिनके पास पूरी जमीन है, और 10 किसान ऐसे जिनके पास मुट्ठी भर जमीन नहीं है। तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ था, लेकिन रशिया में जो है इस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप, एज आई सेड, सोशल ओनरशिप। और ये यूएसएसआर में हुआ आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन, ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हाँ। सो द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज सोशल ओनरशिप, एंड जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। मतलब साथ में मिलके उत्पादन भी होगा और साथ ही मिलके सब काम भी करेंगे। सो कलेक्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर पे ये डिपेंड करता है, ये मतलब इम्प्लीमेंट होता है। एंड कलेक्टिव फार्मिंग और द मॉडल ऑफ कॉलकोज, जो कलेक्टिव फार्मिंग को हम कॉलकोज कहते हैं, कहाँ पे, सोवियत यूनियन में। जो पहले का यूएसएसआर था ना, वहाँ पे इसको कलेक्टिव कॉलकोज कहा जाता था, कलेक्टिव फार्मिंग को, सोवियत यूनियन में। To improve upon the inefficiency of the previous methods of agriculture and to boost agriculture production for self sufficiency। देखो, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ है तो उस समय जो है रशिया में काफी गरीबी थी, है ना, यूएसएसआर में काफी गरीबी थी। और जैसे ही रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो है नई गवर्नमेंट वहां पे चुनी गई, तो उसने क्या किया, सोशल ओनरशिप कर दिया कि अब किसी के पास भी एक्सेस जमीनें नहीं रहेंगी, सबसे जमीनें छीन ली गई। चाहे वो चर्च हो, चाहे जो नोबेल्स थे, सबसे जमीनें छीन कर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। ठीक है, और जो उस समय की जो खेती थी वो भी बहुत ही पिछड़ी हुई थी यूएसएसआर की। तो इसलिए उन्होंने कलेक्टिव जो है फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया कि किसी की भी छोटी छोटी जमीनें नहीं रहेगी, सारे के सारे जो लोग हैं फार्मर जो है अपनी जमीनों को पुल अप करेंगे, अपने रिसोर्सेज को पुल अप करेंगे, और खेती भी जो है एक साथ मिलकर होगी। जिससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो बहुत बेहतर हो जाएगी, और जो रशिया है वो भुखमरी से हटकर जो है सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन्स। ठीक है, तो ये सोचना था कलेक्टिव फार्मिंग का, और इसीलिए रशिया में कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। द फार्मर यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड। अब देखो, कोऑपरेटिव में और कलेक्टिव में यही डिफरेंस है कि कोऑपरेटिव में लैंड पुल अप नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर लैंड पुल अप होता है, जानवरों को भी मतलब मतलब इकट्ठा किया जाता है, एंड लेबर को भी इकट्ठा, मतलब ये नहीं कि एक जगह इकट्ठा कर दिया, मतलब कि वो सबके रिसोर्स हैं।
अगर एक किसान को खेती करनी है एक जमीन पर, तो वो किसी जो भी उस गांव में जमीन है, उस मतलब की सारी जमीनों पर एक साथ खेती की जाएगी और लाइव स्टॉक भी यूज किया जाएगा कि सबके हर फार्मर का, और सारे फार्मर उस पर मिलकर खेती करेंगे। क्योंकि जब खेतों का साइज कम हो जाता है ना, अब इंडिया में क्या है प्रॉब्लम, इंडिया में एक फैमिली में अगर 4 लड़के, तो चारों में छोटे छोटे खेत का बंटवारा हो जाता है। उससे क्या होता है कि लैंड होल्डिंग अनइकोनॉमिकल हो जाती है, उससे बहुत बेहतर रिटर्न नहीं मिल पाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने यूएसएसआर में सारी जमीनों को एक साथ मिला दिया, और सारे जो फार्मर्स थे वो एक साथ मिलकर उस पर कृषि करते थे, और जो भी फायदा होता था वो आपस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो इस तरह की जो फार्मिंग है उसको कहा जाता है कलेक्टिव फार्मिंग। और फार्मर जो थे अपने खेतों में से छोटा सा प्लॉट अपने पास रिटेन कर लेते थे, क्योंकि वहाँ पे खेत बड़े बड़े हुआ करते थे, तो ताकि उसमें वो जो है अपनी जरूरत के जो साग सब्जियां उसको बो सके। तो ये हमारा जो फार्मिंग है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव जो है फार्मिंग इसके बीच में। दैट कोऑपरेटिव फार्मिंग इज बेसिकली it means the pooling of the resources of the farmers voluntarily and for profitable farming के लिए। बट इसमें जो इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग होती है वो इंटैक्ट होती है, उसको पुल अप नहीं किया जाता है। वेयर एज इन कलेक्टिव फार्मिंग इट इज डन बाय द स्टेट ओनली। स्टेट मीन्स सरकार जो होती है गवर्नमेंट के थ्रू ही करवाया जाता है, और इसमें जो जितने भी फार्मर्स होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को, इवन जो लैंड होता है, लाइफ स्टॉक होता है, लेबर, सबको पुल अप करते हैं और साथ में मिलकर खेती करते हैं। एंड इट इज नोन एज कॉलकोज इन रशिया। इस मॉडल को कॉलकोज कहा गया था, और ये रशिया की ही देन है इस तरह की फार्मिंग, बिकॉज दे बिलीव इन द सोशल ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज एंड नॉट इंडिविजुअल ओनरशिप। तो वो इंडिविजुअल पे नहीं उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जमींदारी सिस्टम था कि सबके सब इतने जमीनें लेके बैठे हुए थे, और बेचारे जो 70% पॉपुलेशन है उसके पास कोई जमीन ही नहीं है। तो ये था। नेक्स्ट है हमारा माइनिंग। अब हमने एग्रीकल्चर खत्म हो गया हमारा। एग्रीकल्चर में आपने देखा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, देन एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, देन आपका मिक्स्ड फार्मिंग, मेडिटेरेनियन फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, एंड देन कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, एंड जो आपका हॉर्टिकल्चर एंड मार्केट गार्डनिंग था। तो ये सारी जो फार्मिंग्स हैं इनके आप जो है पॉइंट्स बनाएंगे, और बिल्कुल भी सेंटेंस मत बनाना। जो जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया बस उसके सामने आप चाहें तो, जैसे आपने लिखा कलेक्टिव फार्मिंग, और आप जैसे आपने ये कलेक्टिव फार्मिंग आपने लिखा है, और साथ ही आपने बस एरो बनाए, और 5 एरो बना के आपको कोई भी 5 पॉइंट इसमें लिखने हैं। इस तरह के आपको नोट्स बनाना है। कलेक्टिव फार्मिंग मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। शॉर्ट में नोट्स हमेशा शॉर्ट होते हैं, ताकि आप इन 5 वर्ड्स को देख के यू कैन एक्सपेंड दीज पॉइंट्स वर्ड्स इन द एग्जामिनेशन टू मेक 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह का आपको जो है नोट्स बनाना है, और इससे आप आसानी से अपने एग्जामिनेशन में भी कर सकते हो। ठीक है। अगर और बुक रीडिंग तो मस्ट है, आपको एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल घोल कर पीनी है। नेक्स्ट इज माइनिंग। नाउ द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स इन द, ये जो आपको पता है माइनिंग क्या होता है, इतना मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी। माइनिंग इज द प्रोसेस वेयर वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। जो अर्थ होता है उसमें को, उसमें से हम गड्ढा खून कर उसमें से डिगिंग कर कर जो भी मिनरल्स अवेलेबल होते हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। और ये प्रोसेस बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन जब जो है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है इसको एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन जो माइनिंग एक्टिविटी है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। माइनिंग शुड बी प्रॉफिटेबल, देन ओनली माइनिंग ऑपरेशन जो है वो उसे किया जाता है। अगर माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको हम नहीं करते हैं। नाउ ऑन विच फैक्टर्स माइनिंग डिपेंड्स, फर्स्ट इज योर फिजिकल फैक्टर्स एंड सेकंड इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। नाउ व्हाट इज फिजिकल फैक्टर? फिजिकल मीन्स कि हम माइनिंग उसी जगह करते हैं जहाँ पे हमें पता होता है कि साइज, ग्रेड और मोड ऑफ अकरेंस डिपॉजिट का कैसा है। मान लो अगर हमें कहीं पता चला कि यहाँ पे नीचे आयरन है, तो हम ये देखते हैं कि आयरन कितनी मात्रा में मौजूद है, कौन सी ग्रेड का है, क्योंकि आपको पता है आयरन भी कई क्वालिटी का होता है, कोई भी मिनरल कई क्वालिटीज के होते हैं। तो अगर अच्छी क्वालिटी का है तभी हम निकालने की कोशिश करेंगे, इन्फीरियर क्वालिटी का तो हम नहीं निकालेंगे। साइज कितना है, अगर ज्यादा मिनरल प्रेजेंट है तब तो हम निकालेंगे, लेकिन अगर मुट्ठी भर मिनरल, मुट्ठी भर तो नहीं होता लेकिन जितना भी प्रेजेंट है उसको निकालने के बाद अगर हमें फायदा नहीं होगा तो हमें उसे निकालने में आपको पता है कि जब भी हम मिनरल्स को निकालते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, मशीन यूज करने पड़ते हैं, लेबर यूज करने पड़ते हैं, तो उसमें हमारा खर्चा भी होता है। तो अगर और खर्चा करने के बाद अगर हमें एक मुट्ठी भर मिनरल मिल रहा है तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा? तो उस केस में हम वहां से, हमें पता होगा कि वहां पे है लेकिन हम उसको निकालेंगे नहीं क्योंकि वो कम है, मात्रा में कम है। ठीक है। एंड दूसरा फैक्टर वही जो मैंने भी आपको बता दिया, इकोनॉमिक फैक्टर सच एज डिमांड फॉर द मिनरल। जो जिस मिनरल की ज्यादा डिमांड होती है उसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइक आयरन है, कोल है, इनको सबसे पहले लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं।
देन टेक्नोलॉजी अवेलेबल, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी अवेलेबल है तब तो हम जो है मिनरल्स को निकाल लेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होती तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। देन कैपिटल, और पूंजी कितनी है, और लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपको कोई भी खनिज निकालना है तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि मशीन्स बहुत जो है एडवांस टाइप की यूज होती हैं इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होना चाहिए, तभी जो है आप माइनिंग कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। So all these factors, physical and economic factors, are important for the mining process. Now here you can see a diagram. This diagram can come in the examination. Like वो क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, diagram based questions बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में। तो लाइक ये होता है कि इसको वो डिलीट कर देंगे, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, और फिर कहेंगे कि यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, फिर आपसे पूछेंगे कि ये ए और बी किस तरह की माइनिंग को शो कर रहा है। ठीक है, तो नाउ यू कैन हियर सी इन द एग्जाम द डायग्राम दैट दिस इज ओपन कास्ट और स्ट्रिप माइनिंग। तो बोथ आर द सेम टाइप ऑफ माइनिंग, बट जो नाम अलग अलग रख दिए हैं, ओपन कास्ट और स्ट्रिप माइनिंग। इट मीन्स this type of mining is done in a place where mineral is not deposited at a very great depth, it is near the surface only। ठीक है, जब मिनरल बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास होता है, उसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन कास्ट और स्ट्रिप माइनिंग। हमने बस जो है गड्ढा खोदा यहाँ पे, ये भी नहीं समझो कि बिल्कुल ही एकदम वो क्या उससे खुरपी लाके या फिर फोड़ा लाके हमने खोद दिया तो हमें मिल गया, ऐसा भी नहीं होता है। अच्छा खासा गड्ढा करना पड़ता है, लेकिन इतना डीप नहीं होता है वो जितना इसमें होता है। तो इसमें हमने अच्छा खासा एक गड्ढा कर दिया, डिप्रेशन कर दिया, और हमें आसानी से जो है खनिज मिल गया। तो क्यों, क्योंकि बहुत गहराई में नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी का जो है लेयर्स हैं डिफरेंट, तो जो हमें बहुत गहराई में नहीं जाना पड़ा, बड़ा पहली ही लेयर में हमें जो है खनिज मिल गया। तो इस टाइप की जब भी खनिज इस तरह से अवेलेबल होता है, नॉट एट अ वेरी ग्रेट डेप्थ, व्हेन इट इज अवेलेबल नियर द सरफेस, तो इस टाइप की माइनिंग जो होती है उसको हम कहते हैं ओपन कास्ट और स्ट्रिप माइनिंग। तो जब खनिज बहुत ही पास होता है सरफेस को, उसको निकालने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको हम ओपन कास्ट और स्ट्रिप माइनिंग कहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, व्हेन मिनरल इज फाउंड एट अ वेरी ग्रेट डेप्थ, बहुत गहराई में जब कभी मिनरल प्रेजेंट होता है, तो उसको निकालने के लिए हमें बहुत बड़ा टनल बनाना पड़ता है, फिर उसमें मशीन्स को डालना पड़ता है, और उसमें फिर जो लेबर जाते हैं और उसमें से निकाल के लेकर आते हैं, काफी इसमें मतलब टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो इस टाइप की माइनिंग को हम कहते हैं शेफ्ट माइनिंग। ऑलराइट, बिकॉज वी हैव टू मेक अ शेफ्ट डीप टनल। हियर यू कैन सी कि यहाँ से जो है इंसान अंदर जा रहा है, फिर उसको वो ये इधर जा रहा है, फिर जैसे खनिज निकाल रहा है, फिर वो ऊपर लाएगा। सो इट इज वन ऑफ द डेंजरस टाइप ऑफ माइनिंग ऑल्सो, शेफ्ट माइनिंग। मैनी अ टाइम्स ड्यू टू रेनफॉल और ड्यू टू हाई टेम्परेचर और पॉइजनस गैसेस भी कभी अंदर से निकल आती हैं, तो और रूफ कोलैप्स हो जाता है। देखिए कभी कभी यहाँ पे जो ये लेयर्स होती है बहुत ही वीक होती हैं, रूफ कोलैप्स हो जाता है, तो इससे जो लेबर्स होते हैं वो उसी में दब जाते हैं। तो ये काफी जो है स्पेशली कोल माइंस में होता है, तो ये काफी डेंजरस माइनिंग होती है। तो दिस इज नोन एज शेफ्ट माइनिंग। So the basic difference between is that when minerals are present near the surface, it is taken out with the help of open cast mining, and when the minerals are present deep inside the earth, tunnels are made to extract the minerals, and this process is known as shaft mining, इसको कहा जाता है। एंड जो आपके जैसे आपका कोयला है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये सारे ही मिनरल्स जो है काफी गहराई में आपको मिलेंगे। सो ये वही रिटर्न में है जो मैंने अभी आपको बताया। भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। लाइक मेथड्स ऑफ माइनिंग। अब मेथड्स ऑफ माइनिंग क्या है, व्हेन द ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस, जब आपका जो खनिज है बहुत अंदर पाया जाता है, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड जो होता है उसी को हम शेफ्ट माइनिंग कहते हैं। देखो नाम थोड़े से दो नाम रखे गए। सो शेफ्ट माइनिंग मीन्स अंडरग्राउंड माइनिंग, क्योंकि इसमें जो खनिज है वो काफी डीप पाया जा रहा है, बहुत गहराई में। इन दिस मेथड वर्टिकल शेफ्ट्स हैव टू बी संक, वर्टिकल शेफ्ट्स बनाए जाते हैं और गैलरीज बनाई जाती हैं टू रीच द मिनरल्स। मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सरफेस थ्रू द दीज पैसेजेस, मतलब बहुत मुश्किल से जो है मिनरल्स को निकाला जाता है। इट रिक्वायर्स स्पेशली डिजाइंस, लिफ्ट लगाया जाता है, ड्रिल्स लगाए जाते हैं, हॉलेज व्हीकल्स चाहिए होते हैं इसके लिए, वेंटिलेशन सिस्टम बेहतर होना चाहिए फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल। सोचो इतनी हमें प्रिकॉशंस लेके चलना होता है। दिस मेथड इज रिस्की, poisonous gases, fire, floods, caving in lead to fatal accidents, जो मैंने अभी आपको बताया। Then have you ever read about mine fires and flooding of coal mines in India? आपने सुना ही होगा कि आपने गड्ढा खोदा और उसके अंदर आप जो है माइनर्स हैं बेचारे, और तब तक बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, पानी का पूरा अंदर घुस गया और वो पूरा फिल हो गया गड्ढा, उसमें माइनर्स जो है दब गए। तो ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं।
द डेवलप्ड इकोनॉमीज आर रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग। ये हमने जो है ये तो खैर अलग चीज है। ये फर्स्ट जो हमने नहीं पढ़ाई, सेकंड था आपका फर्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अकरेंस एंड द नेचर ऑफ द ओर, माइनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड। तो सर पहला ये है सरफेस माइनिंग, is also known as open cast mining, and this is the most easiest and cheapest way of mining minerals that occur close to the surface. As I said earlier, that this type of mining is practiced where minerals are close to the surface. Then overhead cost such as safety precautions and equipment is relatively low in this method. The output is both large and rapid. तो ये इस तरह से जो माइनिंग होती है इसमें अच्छा खासा मिल भी जाता है और बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा ये रिस्की भी नहीं है। लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी के मिनरल्स होते हैं ना वो बहुत गहराई में मिलते हैं, दिक्कत ये है ना। जो बेस्ट अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो गहराई में मिलते हैं और बहुत ही कम मिलते हैं, और जो बेकार मतलब जो नॉर्मल क्वालिटी के होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और ये डायग्राम जो है इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आप ये डायग्राम समझ जाओगे, एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर ओवर होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट। चिल्ड्रन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट। तो अगर आपको डाउट नहीं है तो फिर ठीक है, मैं पूछती हूँ आप लोगों से। तो एज आई सेड, आपको जो है ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज टू पार्टिसिपेट, एंड कोई बच्चा लेफ्ट नहीं करेगा, नहीं तो मैं अटेंडेंस यहाँ से डिलीट कर दूंगी। मेरे पूछने पर आपको माइक ऑन करके बोलना है, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब आप सब बच्चे ही आप ही के दोस्त हैं, हम लोग हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको जितना आता हो उतना आप बता दीजिए, और इसमें ये नहीं कि आप डर के मारे लेफ्ट करके भाग गए। ठीक है, तो एक बस हम एक रिकैपिचुलेशन कर रहे हैं, तो वही मैं आपसे बस इतना पूछना है, तो आप उसका आंसर देंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक विटीकल्चर और कल्टीवेशन ऑफ ऑलिव्स, जिससे मैं पूछूंगी फिर वही बच्चा आंसर करेगा। ऑलिव्स और मेकिंग वाइन ऑफ हाई क्वालिटी, और ग्रोइंग दिस फिग्स, ऑलिव, रेसिन, ये जो भी क्रॉप्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स, ये किस कृषि की खासियत है? यस किरण नेगी बताइए। मैम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ऑलराइट, वेरी गुड। This is the specialty of Mediterranean farming to grow citrus fruits like your this oranges, grapes, viticulture. Viticulture मैंने आपको कल बताया था, viticulture is the growing of grapes on a large scale to make wine, raisins and currants. All right. Okay. Now next question is जो भूमध्य सागरीय कृषि जो है उसको मार्केट कहाँ से मिलता है? जो भी उसके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनका सबसे आसान और जो है पास का मार्केट कौन सा होता है और क्यों होता है? भूमध्य सागरीय कृषि को काफी फायदा होता है, जो भी वो फ्रूट्स एंड ग्रो करते हैं उनको रेडी अवेलेबल मार्केट मिल जाता है, तो कहाँ से मिलता है? यस जी आप बताएंगी। अगर आपको नहीं भी आता तो माइक ऑन करके आप बोल दो कि नहीं मैम नहीं आता, कोई बात नहीं। नो मैम। ओके, कोई बात नहीं। अंजलि राणा आप बताएंगी। अंजलि आप बताएंगी। नो मैम। ओके, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था जिया एंड अंजलि कल की जो है आपका जो भूमध्य सागरीय कृषि है वो जैसे सदर्न यूरोप में होता है, तो उसके ऊपर जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? देखो जो भी ये प्रोडक्शन होता है ना ऑलिव का या फिर ग्रेप्स का, ये विंटर सीजन में होता है, सर्दियों के मौसम में होता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में भूमध्य सागर के आसपास के एरिया जो होते हैं उनमें हल्की सी गर्मी होती है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ यूरोप होता है वहां पे बहुत ठंडी होती है। ठीक है, और कोई आंसर करना चाहेगा? देवांश आपको मालूम है? Ma'am, it is near the Europe and the North Africa, Tunisia, Atlantic coast, South California, Central Chile, and it was mainly in the urban centers where the high income group of consumer is located, and both the labor and capital intensive are lays emphasis on the use of irrigation, HYV seed, fertilizer, and insecticide, etc. Okay,
ठीक है, आपने जो बोला, लेकिन जो मेरा मेन ये पूछने का मतलब था, अभी मैं अगर आपको दिखाती हूँ, ये मैं पूछ क्या रही थी, भूमध्य सागरीय कृषि। ये देखिए, मैंने आपसे पूछा कि देखो इस वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि विंटर सीजन में जब भूमध्य सागर के आसपास के एरियाज में कल्टीवेशन होता है, ये मैं बोल रही थी आपसे, ये पॉइंट। ठीक है, देखो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में जब वैल्यूएबल क्रॉप्स ग्रो होते हैं लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन विंटर सीजन, उस समय जो नॉर्दर्न आपका यूरोप होता है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज होती हैं, वहां पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर नहीं होती, क्योंकि वहां पे बहुत ही चिल्ड विंटर्स होते हैं, बर्फ से पूरा एरिया ढका होता है, चिल्ड विंटर्स होते हैं, तो वहां पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मात्रा में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो होता है आपका मेडिटेरेनियन एरिया, वो उनको क्या सप्लाई करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये देखिए, मैंने आपको कल मैप पे भी बता के दिखाया था कि जो यहाँ पे ये जो एरियाज हैं, मान लो यहाँ पे आपका भूमध्य सागर के आसपास के जो एरियाज है जहाँ पे ये कृषि की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब बन रहे हैं। लेकिन जो यूरोप के और सारे देश हैं, ये सारे देश जो है, डेनमार्क है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, या फिर कनाडा है, अमेरिका है, यहाँ पे विंटर्स बहुत चिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है। तो इनके जो ये सारे देश, इनको फायदा हो जाता है, क्योंकि भूमध्य सागर की वजह से यहाँ पे तो क्लाइमेट थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी हल्की गर्मी होती है, जिससे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाते, क्योंकि ये अंदर है, इंटीरियर में, भूमध्य सागर से दूर है, और हाई लैटिट्यूड्स में है, मतलब बहुत ठंडे एरिया में। तो ये इनको क्या करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनको सप्लाई करते हैं। तो आपको ये लिखना होगा आंसर में कि जो भूमध्य सागर में जो ग्रो होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो उनको मार्केट मिल जाता है नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, बिकॉज वहाँ पे काफी विंटर का मौसम होता है, काफी सर्दी होती है, और वहाँ खुद जो है वेजिटेबल्स ग्रो नहीं हो पाते हैं, इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक एक लाइन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक एक एनसीईआरटी की बुक मैं आपको चाहती तो अभी उससे पीपीटी से भी पढ़ा सकती हूँ, उठा के पीपीटी से पढ़ा दूँ जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, बाकी आप 12th के बच्चे आप पढ़ते रहो। लेकिन मैं नहीं पढ़ाती हूँ आपको पीपीटी से, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, इसमें एक एक लाइन बहुत अच्छे से दी हुई है, मतलब वेग नहीं है। तो ज्योग्राफी की बुक अगर आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी, तो आपका जो है आपको अच्छा खासी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, नाउ आप मुझे बताएंगे market gardening and horticulture, why they are practiced near urban areas? Market gardening and horticulture और ट्रक फार्मिंग, ऑल दीज जो फार्मिंग्स हैं, व्हाई दे आर प्रैक्टिस नियर अर्बन एरियाज, शहरों के समीप क्यों की जाती हैं? नंदनी बताएंगी? नंदिनी, सूजल, ज्योति, कोई बताना चाहेगा? जो बच्चा क्लास कर, मैम वहाँ पे वेट वेट, अच्छा जिया आप बताएंगी, बताइए जिया। मैम वहाँ पे गुड ट्रांसपोर्टेशन होती है और हाई अर्बन सेंटर्स अवेलेबल होते हैं, इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इन लोकेटेड होते हैं। ओके, जिया ने बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया है। इन्होंने कहा कि लाइक दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स, दे प्रोड्यूस वैल्यूएबल क्रॉप्स, मूल्यवान जो है क्रॉप्स की ग्रो करते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत अधिक होती है ना। ऐसे जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, हमें पता भी नहीं होता उनके बारे में, तो ये वो चीजें ग्रो करते हैं। तो इनका रेट भी ज्यादा होता है। कीवी है ना, ये 100 रुपए में दो मुश्किल से मिलेगा। या फिर और भी ऐसे फ्रूट्स जो हमने सुना ही नहीं होगा, ट्रॉपिका, कैसे कैसे फ्रूट्स के नाम होते हैं जो आपने सुने ही नहीं होंगे। तो विदेशी कल्चर भी आ चुका है ना। तो हम या फिर हमारा इंडिया के कई क्रॉप्स विदेशों में जाते होंगे। तो ये जो ग्रो होते हैं जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या फ्लावर्स हैं, ये हाई वैल्यूएबल क्रॉप्स होते हैं, विच आर मेंट ओनली फॉर द रिच अर्बन कंज्यूमर्स। रिच दो रीजन है, एक तो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी होता है शहरों के आसपास, देन डिमांड उनकी ज्यादा होती है अर्बन एरियाज के पास। क्यों? क्योंकि वहां पे रिच अर्बन कंज्यूमर्स होते हैं। इसीलिए गांव में अगर आप लगा देंगे तो कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा, आपको कौन खरीदेगा, क्योंकि उनको फल फूल की जरूरत है क्या? ठीक है ना। तो हम लोग जितना शहरों में रहते हैं उतना ही हमें ज्यादा पता होता है, दिमाग चलाते हैं उतना ही ज्यादा हम लोगों को ये सब चाहिए होता है। तो इसीलिए ये जो इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है वो अर्बन एरियाज में लगाई जाती है, जहाँ पे रिच अर्बन कंज्यूमर्स प्रेजेंट हैं, प्लस वहाँ पे उनके पास पैसे भी हैं खरीदने के, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर है। ओके, देन आप बताइए किस कंट्री में सबसे अधिक फ्लोरिकल्चर होता है? कौन बताएगा फ्लोरिकल्चर? दीपिका बताएंगी, दीपिका बमरारा।
विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्लोरिकल्चर? फ्लोरी मतलब जहाँ पे फ्लावर कल्टीवेशन होता है, स्पेशली ट्यूलिप्स, किस देश में सबसे अधिक किया जाता है? या तो कोई और बच्चा बता सके, भूमिका बताइए। मैम नीदरलैंड। हाँ अर्चना बताओगी? मैम नीदरलैंड। नीदरलैंड, यस करेक्ट। नीदरलैंड में सबसे अधिक जो है ट्यूलिप्स कल्टीवेशन होता है, जहाँ पे पूरे यूरोप में उसको सप्लाई किया जाता है। ओके नेक्स्ट आप बताइए जरा मुझे, ये किस कंट्री में जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है मूवमेंट सबसे सक्सेसफुल रहा है? मैम डेनमार्क। डेनमार्क। यस, डेनमार्क में सबसे ज्यादा रहा है। ओके देन आप मुझे बताइए, when minerals are present near the surface, which type of technique is used to extract them? मैम Which mining? स्ट्रिप माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग। Okay, strip or open cast mining. And when the minerals are present deep inside the earth, then मैम शाफ्ट माइनिंग। मैम शाफ्ट। yes, सलोनी थपलियाल ने जो है क्या बताया बेटा सलोनी? मैम शाफ्ट माइनिंग। यस, शेफ्ट माइनिंग जो है उसको फॉलो किया जाता है। ओके देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग एंड इसका नाम क्या रखा गया था यूएसएसआर में इस मॉडल का? मैम खोलकोस। ओके कोलकोस है, और किस उस पे बेस्ड है ये? मेन प्रिंसिपल क्या है कलेक्टिव फार्मिंग का? मैम Yes, इसमें मैम टारगेट्स आर सेट बाय द गवर्नमेंट एंड द प्रोड्यूस इज आल्सो सोल्ड फॉर द स्टेटेड फिक्स्ड प्राइस। ओके करेक्ट। सो इट मीन्स जो भी आपने कहा, सरोनी ने भी आंसर दिया, किरण ने भी बताया कि ये जो है सोशल ओनरशिप के ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सोशल ओनरशिप। इट मीन्स that every farmer has to pull up their land, livestock and labor for collective farming. यही है ना मेन, इस पे है, इवन लैंड भी पुल अप हो जाता है। देन यस, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग का मेन क्या है, मतलब क्या है मिक्स्ड फार्मिंग में? ये मिक्स क्यों कहा जाता है, क्या मिक्स है इसमें? और कोई बताएगा? रोहित कहाँ है? रोहित नहीं क्लास में? मैम इसमें एग्रीकल्चर के साथ जो पशु हैं उनको भी पालते हैं, जिससे उनको उसमें अर्निंग में बेनिफिट होता है। ओके सलोनी ने आंसर दिया, मुझे बहुत कट कट की आवाज आ रही है, लेकिन इतना समझ में आया कि और कोई बताना चाहेगा? मैम मिक्स्ड फार्मिंग इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द सेम फार्म। ओके करेक्ट। इट इज द, ये कोई भी मत लिख देना उसमें कि मतलब इसमें दो तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ऐसे नहीं होता। इसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं एट द सेम टाइम एनिमल्स और लाइफ स्टॉक्स आर आल्सो रेयर्ड फॉर इनकम, फॉर प्रॉफिटेबल फार्मिंग। एंड इसमें फॉडर क्रॉप्स जो होते हैं वो भी इनकी खासियत है कि फॉडर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एंड इट इज प्रैक्टिस इन द मिड लैटिट्यूड्स एरिया। एंड मैंने सबसे बड़ा बताया आपको कि हर देखो लंबे पॉइंट्स कोई मत लिखना इसमें, जो भी फार्मिंग्स है उनके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं वो आप याद कर सकते हो और उन्हीं को आप जो है लिख सकते हो। और प्लस इनको मैप में लर्न करना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरियाज हैं। ये है कि पेज खोल कर आप लर्न करो कि भाई अच्छा ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इससे बेहतर है कि मैप खोल के लर्न करना, तो आपको एरिया भी लर्न हो जाएगा जो आप थ्योरी में भी लिख सकते हो, और मैप बनाकर भी आप आंसर कर सकते हो। और जो एक और चीज करना है आप सब बच्चों को, वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस करना है। पेंसिल से वर्ल्ड मैप हर बच्चे को बनाना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ज्योग्राफी में क्या है, आप जितना मैप बनाएंगे, जितना फ्लो चार्ट बनाएंगे, जितना क्रिएटिविटी दिखाएंगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वर्ल्ड मैप हर बच्चे को हाथ से बनाना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन जैसे सिंपल एक होता है ना, जैसे मैं मान लो यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आपके सामने से, ये तो वैसे ये चलेगा नहीं बहुत ढंग से, लेकिन अब जैसे देखो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अभी ये बना रही हूँ आपके सामने। अभी ये मैं बहुत अच्छा वैसे नहीं बना पाऊंगी, लेकिन आपको जो है थोड़ा बहुत तो इससे समझ में आ ही जाएगा। ये हो गया, ये हो गया ऐसे, ये हडसन बे है, ये हो गया ऐसे, फिर ये हो गया ये ऐसे, ठीक है? फिर ये सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका हो गया, ये जो नहीं दिखेगा आगे, ये आपका
जो भी आप समझ जाओगे। फिर यहाँ पे आपने जैसे कि ये बनाया, फिर ऐसे करके ये बना दिया आपने, ये आपने ऐसे करके बना दिया ऐसे, ये आपका अफ्रीका हो गया। अब यहाँ पे आगे बन नहीं पा रहा ठीक से, ये अरेबियन पेनिसुला हो गया। फिर आगे चल के ऐसे इंडिया बन जाएगा, है ना, ये बन गया इंडिया। फिर ये आपका जो वो म्यांमार मलेशिया वाला पार्ट है, फिर ऐसे करके यूँ करके आपका चाइना ऐसे आगे चला जाएगा। यहाँ जगह होता है तो फिर मैं ये यूरोप ऐसे करके यूरोप आपका बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप बना दोगे वो लंदन, जो क्या है इंग्लैंड, इंग्लैंड बन गया यहाँ पे। यहाँ पे नीचे जाके आपका ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पे आपका ये इंडोनेशिया हो गया। तो मतलब इस तरह का जो है कम से कम इतना मैप आपको बनाना आना चाहिए कि आपने 1 सेकंड में मैप बना दिया। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने मैंने खुद बहुत परफेक्ट मैप बनाया है, लेकिन कम से कम आपको समझ में आ रहा है ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। हमें नीचे बना नहीं पाई मैं, लेकिन जैसे कि मान लो ये बनता तो इस तरह से बनता, इस तरह से, ये इस तरह से आपका बन जाता ये साउथ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये आपका यूरोप है। तो मान लो आगे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में आपको कोई 5 पॉइंट लिखना है, तो उसमें आपने लिख भी दिया, साथ साथ ये मैप इंडिविजुअली इसके नीचे जस्ट बनाया, और आपने लिखने के बजाय दिखा दिया एरियाज ऑफ, आपने नीचे लिख दिया एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये लिख दिया आपने प्रेरीज, यहाँ पे लिख दिया अर्जेंटीना पैम्पस, यहाँ पे लिख दिया आपने स्टेपीज, यहाँ पे लिख दिया आपने साउथ अफ्रीका में वेल्ड, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तो आपने एक कॉपी में लिखने के बजाय आपने मैप बना के दिखा दिया, आपको बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह का जो है एक स्केच आपको बनाना आना चाहिए हर बच्चे को, वर्ल्ड मैप। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगी। थैंक यू क्लास। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो अभी हुई नहीं है मेरी, रिकॉर्डिंग मैंने बंद ही नहीं की है। अच्छा, तुम लोग की अटेंडेंस नहीं लगी है क्या? जिन बच्चों की अटेंडेंस लग चुकी है वो हट सकते हैं, जिनकी नहीं लगी है वो मुझे बता दें। अंजलि राणा प्रेजेंट है? प्रेजेंट अंजलि राणा। अर्चना मैम। प्रेजेंट मैम। एक मिनट। भूमिका, दीपिका, गरिमा पांडे, कशिश। प्रेजेंट मैम। कशिश प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। और गरिमा किसने बोला है? गरिमा, कशिश किसने बोला? कुमारी आंचल। प्रेजेंट मैम। मैम मानसी भूमिका राणा। प्रेजेंट मैम। हाँ, तो अपना प्रेजेंट नाम मैम। रख के बोलो कि प्रेजेंट है। ठीक है, मैम नंदिनी। कशिश प्रेजेंट मैम। ज्योति एक मिनट, प्रेजेंट कशिश का मैम। मैंने लगा दिया। मैम ज्योति प्रेजेंट मैम। ज्योति प्रेजेंट लगा चुकी हूँ तुम्हारा। नंदिनी काला मेटी है। मैम भूमिका सलोनी थपलियाल। प्रेजेंट कुलवी। मैम। तमन्ना मैम कशिश प्रेजेंट मैम। लगा दिया मैंने। तमन्ना मैम मानसी राणा लगा प्रेजेंट दिया, मैम। मानसी का भी। तमन्ना। तन्वी, तन्वी प्रेजेंट है। अच्छा, ये तन्वी को मैसेज दे देना कि बहुत जो है क्लास अटेंड नहीं करती हैं ये। ठीक है, इसकी जो है अटेंडेंस बहुत ही कम है तन्वी की। मुझे लगता है जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से इसने अटेंड नहीं किया।